السلام علیکم، میرا نام عثمان علی ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل میتھس اینڈ انٹرٹینمنٹس دیکھ رہے ہیں ویورز۔ آج کا میرا ٹاپک جذر المربع ہے۔ جذر المربع کو عام جو ہم زبان اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ جذر ہی استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی نمبر کا جذر کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ تو جذر معلوم کرنے کے بیسیکلی دو طریقے ہیں۔ ایک ہے جذر بذریعہ تجزی اور ایک دوسرا طریقہ ہے جذر بذریعہ تقسیم۔ بیسیکلی یہ دو طریقے ہیں جذر معلوم کرنے کے۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ اسٹوڈنٹس کو ایزی لگتا ہے اس طریقے سے وہ سوال حل کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جذر بذریعہ تجزی سے دو سوال یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دو سوال میں آپ کو جذر بذریعہ تجزی سے کر کے دکھاؤں گا اور اس کا طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا۔ سوال نمبر 1 لکھا ہوا ہے 1225۔ تو تجزی کا جو مطلب ہے وہ اجزاء یعنی نمبرز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ تو اس کا ہم نے جذر معلوم کرنا ہے۔ جذر کی جو علامت ہے وہ یہ ہے، یہ جذر کی علامت ہے۔ تو یہ 1225 کا جذر تجزی کے طریقے سے کیسے کریں گے؟ ہم نے 1225 کی سب سے پہلے تجزی کر لینی ہے، یعنی اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ یہ دیکھنا ہے یہ نمبر کس نمبر پہ پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نمبر طاق ہے، اس لیے یہ 2 بار تقسیم نہیں ہو سکتا۔ 3 پر اگر دیکھیں تو یہ 3 پر بھی تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ 5 پر تقسیم ہو جائے گا پورا پورا، تو ہم اس کو 5 پر تقسیم کریں گے۔ 5 2 پر 10، 2 بچ جائے گا، ادھر 22 بن جائے گا، 5 4 بار 20، پھر 2 بچ جائے گا، 25 بن جائے گا، اور 5 5 بار 25۔ اب یہ بھی 5 پہ تقسیم ہو جائے گا، 5 4 بار 20، 4 بچ گیا، اور 5 9 بار 45۔ اب یہ 5 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ 7 کے پہاڑے میں آئے گا۔ 7 7 بار 49، اور 7 1 بار 7۔ 1225 کو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اب 1225 کی جگہ جذر کے اندر ہم یہ نمبر لکھ لیں گے ضرب کی شکل میں۔ اب ان نمبرز کو ہم نے جذر سے باہر لے کے آنا ہے۔ تو ان کا جذر سے باہر لے کے آنے کا طریقہ یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جذر ہے یہ ایک جیل کی طرح ہے اور یہ قیدی ہیں۔ آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ قیدی ہیں اور یہ قیدی جیل سے باہر اسی صورت آ سکتے ہیں، دو قیدی، جب 2 قیدیوں کے نام ایک جیسے ہوں گے تو وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ اب فرض کریں یہ 2 قیدی ہیں، ان کے نام دیکھیں ایک جیسے ہیں، یہ بھی 5 ہے، یہ بھی 5 ہے، تو یہ ایک جوڑا بن جائے گا۔ جب یہ جوڑا بن جائے گا تو اس جذر سے باہر یعنی جیل سے باہر اس نے آنا ہے، تو یہ باہر آ کر ایک بار ہم لکھ دیں گے، یعنی اگر 5 2 بار ہے تو باہر آ کے 5 ایک بار لکھ دیں گے۔ اسی طرح یہ 7 2 بار ہے تو یہ بھی جذر سے باہر جب آئے گا تو ہم اس کو ایک بار لکھ لیں گے۔ اب ان دونوں کو ضرب کر لیں، 5 7 بار 35۔ تو یہ 35 اس کا جواب ہے۔ یا اگر جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی پاور بنا لیں، 5 2 بار ہے تو 5 کی پاور 2 لکھ لیں، اور 7 بھی 2 بار ہے تو 7 کی پاور بھی 2 لکھ لیں۔ تو یہ 5 جو ہے اس کو الگ جذر کے اندر لکھ لیں، اور 7 کو الگ جذر کے اندر لکھ لیں۔ یہ کٹ جائے گا جذر کے ساتھ، ادھر 5 رہ جائے گا، ادھر 7 رہ جائے گا، تو 5 7 بار 35۔ ایک طریقہ یہ ہے جو پراپر طریقہ ہے میتھ کا، اور ایک جو
ये तरीका है कि जो एक जैसे दो नंबर, उनको एक बार आपने बाहर लिख देना है। ये एक जैसे दो नंबर हैं, इनको हमने एक बार बाहर लिख लिया है। ये एक जैसे दो नंबर हैं, इनको आपने एक बार बाहर लिख दिया है। तो 5 7 बार 35, ये इसका जवाब आ जाएगा। अब मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ, वो भी मैं जज़र बज़र या तज़यी के तरीके से करूँगा। इसकी आपने सबसे पहले तज़यी कर लेनी है। ये नंबर 2 पे तकसीम हो जाता है, तो इसको 2 पे तकसीम कर लें। 2 8 बार 16 असल 1, 2 8 बार 16 और 2 2 बार 4। ये भी 2 पे तकसीम हो जाएगा। 2 4 बार 8, 2 4 बार 8, 2 1 बार 2। अब ये 2 पे तकसीम नहीं होगा। 3 बार अगर चेक करें तो ये 3 पे तकसीम हो जाएगा। 3 1 बार 3 असल 1 14 बन जाएगा। 3 4 बार 12 असल 2 21 बन जाएगा। और 3 7 बार 21। ये नंबर भी 3 पे तकसीम हो जाएगा। 3 4 बार 12, 3 9 बार 27। ये 7 पे तकसीम होगा। 7 7 बार 49 और 7 1 बार 7। अब हमने 1764 की जगह ये नंबर ज़रब की शक्ल में लिख लेने हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 7। अब ये नंबर दो एक जैसे हैं, इनको बाहर लिख लें एक बार। ये दो नंबर एक जैसे हैं, इनको बाहर लिख लें एक बार। ये दो नंबर एक जैसे हैं, इनको एक बार बाहर लिख लें। अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 3 बार 6, 6 7 बार 42। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं एक और नंबर लिखता हूँ जो जज़र बज़र या तज़यी के तरीके से ही मैं करूँगा। मिसाल के तौर पर 16 है, तो इसकी हम तज़यी जब करेंगे 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो हम 16 की जगह ये नंबर लिख लेंगे ज़रब की शक्ल में। अब इनके जोड़े बना के आपने बाहर निकालने हैं। ये दो एक जैसे हैं, इसको बाहर लिख लें ज़रब। ये दो एक जैसे हैं, इनको बाहर लिख लें 2 2 बार 4। इसका जवाब आ जाएगा। यानी आपने जोड़ों की शक्ल में नंबर्स को जज़र से बाहर निकालना है। तो ये जज़र बज़र या तज़यी का तरीका था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जज़र बज़र या तकसीम की तरफ। जज़र बज़र या तकसीम कैसे करना है, ये मैंने एक सवाल लिखा हुआ है 49,729। तो जज़र बज़र या तकसीम का तरीका बिल्कुल आसान है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने जो सबसे पहला काम करना है वो दिए गए नंबर के जोड़े बनाने हैं और जोड़े दाएं साइड से बनाने स्टार्ट करने हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। अगर इधर एक डिजिट रह जाता है तो वो भी एक जोड़ा तस्वर किया जाएगा, एक पेयर तस्वर किया जाएगा। अब आपने सबसे पहले पहला पेयर लेना है, पहला जोड़ा लेना है। ये 4 है, तो आपने एक जैसे दो नंबरों को ज़रब करना है। एक ज़रब एक एक होता है। दो को ज़रब करना है तो वो दो के साथ ही करना है। 2 ज़रब 2 4। 3 को करना है तो वो 3 के साथ ही करना है। 3 ज़रब 3 9। क्योंकि तकसीम के अमल में तो इधर नंबर लिखा होता है जिसे आपने तकसीम करना है, लेकिन जज़र में कोई भी नंबर इधर नहीं दिया होता जिससे आप ज़रब करके नीचे नंबर लिख सके। तो आपने ये 4 लिखा हुआ है, तो मैं देखूँगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जिसका जवाब 4 या 4 से नज़दीक तरीन छोटा नंबर आ रहा है। तो अगर एक ज़रब एक मैं लिखता हूँ तो ये एक आता है। 2 ज़रब 2 लिखता हूँ तो 4 है। तो 4 आ गया है, तो इधर मैं 2 लिखूँगा, इधर भी 2 लिखूँगा। 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 में से 4 ज़ीरो। अब नेक्स्ट जोड़ा पूरा आपने नीचे उतारना है, एक डिजिट नीचे नहीं उतारना।
97 है तो 97 लिख देंगे। अब ये ज़ीरो इधर बाएं साइड पे लिखा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको मैंने मिटा दिया है। अब इधर कौन सा नंबर लिखना है, इन दो नंबरों को जमा करना है। 2 जमा 2 4। अब 4 आ गया है। अब ये 97 है। अब 4 के साथ अगर मैं 1 लगाता हूँ, ज़रब भी आपने 1 के साथ करना है। 4 के साथ जो हिंसा लगाना है, ज़रब भी आपने उसी हिंसे के साथ करना है। 4 के साथ अगर मैं 1 लगाता हूँ, ज़रब भी 1 से करता हूँ, तो ये 41 आ जाएगा। अगर मैं 4 के साथ 2 लगाता हूँ, ज़रब भी मुझे 2 से ही करना पड़ेगा, तो ये 84 आ जाएगा। अगर 4 के साथ मैं 3 लगाता हूँ, ज़रब भी मुझे 3 से करना पड़ेगा, तो ये 3 3 बार 9, 3 4 बार 12। अब देखें 97 से छोटा और 97 से नज़दीक तरीन कौन सा नंबर आ रहा है। 41 छोटा है लेकिन नज़दीक तरीन नहीं है। 84 ये छोटा है और नज़दीक तरीन भी है, इसलिए हम 84 इधर लिखेंगे। 4 के साथ हमने क्या लगाया है, 2 लगाया है। ज़रब भी किससे किया है, 2 से किया है, तो ये 84 आ गया। इसको मैं माइनस करता हूँ। 7 में से 4 निकाल दें तो 3, 9 में से 8 निकाल दें तो 1। अब ये नेक्स्ट पेयर जो है ये आपने नीचे उतार लेना है 29। अब इधर कौन सा नंबर लिखना है, इस नंबर में ये जो राइट साइड पे इंसा होगा वो जमा करके इधर आपने लिखना है। 42 है, इसमें राइट साइड वाला इंसा 2 है। 42 प्लस 2 44 आ गया, इधर हम लिख लेंगे। अब 44 के साथ हमने कोई इंसा लगाना है। 44 है तो इसके साथ अब हमने कोई एक इंसा लगाना है और ज़रब भी उसी से करना है, और जवाब या यही आना चाहिए या इससे नज़दीक तरीन आना चाहिए। 44 के साथ 1 लगाएं, ज़रब भी 1 से करें तो ये 441 आएगा। 44 के साथ 2 लगाएं, ज़रब भी 2 से करें तो 2 2 बार 4, 2 4 बार 8, 2 4 बार 8, ये छोटा आ रहा है। 44 के साथ 3 लगाएं, ज़रब भी 3 से करें, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, सल 1, 3 4 बार 12 और 1 13। आप देखें 44 के साथ मैंने 3 लगाया, ज़रब भी 3 से किया है, तो ये 1329 आ गया। तो इधर हम 3 लिखेंगे, इधर भी 3 लिखेंगे, 1329 जवाब आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे, इधर सिफर बच गया है। तो हमारा जो जवाब है इसका वो ये ऊपर वाला है 223। अब जज़र में इंसू की तादाद अगर मालूम करनी है हमने तो उसका क्या तरीका है, जितने आपके जोड़े बनेंगे जवाब में इंसू की तादाद भी उतनी होगी। अब देखें जज़र में ये जो जोड़े बने हैं इस नंबर के 1 2 3 जोड़े बने हैं, तो जो जवाब हमारा आया है उसमें भी देखें 3 इंसे हैं, 1 2 3। तो ये जज़र में इंसू की तादाद मालूम करने का बिल्कुल आसान तरीका है, और ये जज़र बज़रिया तक़सीम का आसान तरीका। अब मैं एक और सवाल करता हूँ जिससे आपको मज़ीद जज़र बज़रिया तक़सीम की समझ आ जाएगी। सवाल लिखा हुआ है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने जो आपको बताया था वो जोड़े बनाने का है। राइट साइड से 1 2 3 4, तो इसका जो जवाब आएगा उसमें 4 हिस्से होंगे। अब 10 है तो पहला काम 1 ज़रब 1 1, 2 ज़रब 2 4, 3 ज़रब 3 9, 4 ज़रब 4 16। 10 के नज़दीक कौन सा है, 9 है। 9 कैसे आया है, 3 को 3 से ज़रब किया है, 3 को 3 से ज़रब किया है तो 9 आ गया है।
10 में से 9 निकाल दें तो 1 बच गया। अब ये जोड़ा नीचे ले आएं। इधर क्या लिखेंगे, इन दोनों को जमा करके 3 जमा 3 6। अब 6 के साथ कोई इंसा लगाना है और ज़रब भी उसी इंसे के साथ करनी है और जवाब 132 या इससे नज़दीक तरीन आना चाहिए। 6 के साथ 1 लगाएं, ज़रब भी 1 से करें तो 61 आएगा। 6 के साथ 2 लगाएं, ज़रब भी 2 से करें तो ये 124 आएगा। 6 के साथ 3 लगाएं, ज़रब भी 3 से करें तो ये 189 आ जाएगा। अब 132 के नज़दीक और छोटा कौन सा है, 124। 124 कैसे आया है, 6 के साथ 2 लगाने से। 6 के साथ 2 लगाने से और ज़रब भी 2 के साथ किया है तो जवाब क्या आया है, 124। 132 में से 124 माइनस कर दें, 8 बच जाएगा। अब नेक्स्ट जो जोड़ा है वो नीचे ले आए, 897। अब इधर क्या लिखेंगे, 62 में इधर राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो आपने जमा करके लिखना है। 62 जमा 2 64। अब 64 के साथ कोई हिस्सा लगाना है और ज़रब भी उसी हिस्से के साथ करनी है। 64 के साथ 1 लगाएं, ज़रब भी 1 से करें तो ये 641 आएगा। अगर 64 के साथ 2 लगाएं, ज़रब भी 2 से करें तो ये 1284 आ जाएगा। 897 है तो हम 1 लगाएंगे और ज़रब भी 1 से करेंगे तो ये 897 से छोटा नंबर है और नज़दीक भी है। अगर 2 लगाते हैं तो बड़ा नंबर आ जाता है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। इधर 1 लगाएं, ज़रब भी 1 से करें, 641 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर लें, 7 में से 1 निकालें तो 6, 9 में से 4 निकालें तो 5, 8 में से 6 निकालें तो 2। अब ये जोड़ा नीचे ले आएं। अब इधर क्या लिखेंगे, 641 में से राइट साइड वाला नंबर इंसा जो है वो जमा करके इधर लिखेंगे। 641 जमा 1 642 आ जाएगा। अब 642 के साथ हमने कोई इंसा लगाना है और ज़रब भी उसी इंसे के साथ करनी है ताकि ये मतलूबा जो नंबर है ये हासिल किया जा सके। 642 के साथ अगर हम 5 लगाते हैं, ज़रब भी 5 से करते हैं तो ये जवाब आएगा 5 5 बार 25 असल 2, 5 2 बार 10 और 2 12 असल 1, 5 4 बार 20 और 1 21 असल 2, 5 6 बार 30 और 2 32। ये 25,696 है तो ये आ गया है 32,125। ये बड़ा नंबर आ गया है 5 लगाने से। अगर हम इधर 4 लगाते हैं, 642 के साथ 4 लगाएं, ज़रब भी 4 से करें, 4 4 बार 16 असल 1, 4 2 बार 8 और 1 9, 4 4 बार 16 असल 1, 4 6 बार 24 और 1 25। 25,696 है तो ये भी 25,696 आ गया है। कैसे आया है, 642 के साथ 4 लगा के ज़रब भी 4 से किया है, इसके साथ 4 लगा के ज़रब भी 4 से करेंगे तो ये 25,696 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब देखें जोड़े कितने बने थे, 1 2 3 4। जो जवाब आया है उसमें इंसों की तादाद देखें, 1 2 3 4। तो ये हमारा जवाब आ गया है 3,214। तो ये जज़र मालूम करने का तकसीम का तरीका है। अगर आपको समझ आ गई है इस सवाल की तो ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो दोबारा इस वीडियो को देख लें ताकि आपको सही आसानी से समझ आ सके। जो जज़र बज़रिया तकसीम है ये तज्ज़ी, जज़र बज़रिया तज्ज़ी की निस्बत
آسان طریقہ ہے اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس سوال حل کرتے وقت اسی طریقے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر پیپر میں سوال شرط کے ساتھ لکھا ہو کہ یہ سوال آپ نے تجزیے کے طریقے سے کرنا ہے تو پھر آپ نے جذر بذریعہ تجزیے ہی کرنا ہے، اور اگر شرط یہ لکھی ہو کہ تقسیم کے طریقے سے جذر معلوم کریں تو پھر آپ نے تقسیم کے طریقے سے جذر معلوم کرنا ہے۔ لیکن اگر صرف جذر لکھا ہو کہ جذر معلوم کریں تو آپ ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ استعمال کر کے اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو جذر المربع کے دونوں طریقوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل میتھس اینڈ انٹرٹینمنٹ سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔